Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about balancing a chemical reaction. Now we are going to study about law of conservation of mass. What is meant by law of conservation of mass? Law of conservation of mass is also known as law of conservation of matter. According to this law, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another. It means that during a chemical reaction, there is no production or no destruction of mass, but we can change mass from one form to another form. In other words, we can say that the total mass of product is equal to the total mass of reactants. For example, a chemical reaction between silver nitrate and sodium chloride gives us silver chloride precipitates and sodium nitrate. When we'll take the mass of products and mass of reactants separately, then we will predict that the mass of products is equal to the mass of reactants, which proves the law of conservation of matter. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस या फिर कानून बकाए मादा के मुताबिक केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मैस है यानी मादा, उसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको फना किया जा सकता है, बल्कि मादा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। जैसे हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स हैं तो रिएक्टेंट्स को हम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, रिएक्टेंट की वो दूसरी फॉर्म होते हैं। इस तरह से नहीं हो सकता कि हमारे पास जो मैस है उसको हम डिस्ट्रॉय कर दें और न्यू मैस क्रिएट हो जाए। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी दूसरी फॉर्म यानी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं पॉसिबल कि मैस को हम क्रिएट कर लें या फिर मैस को डिस्ट्रॉय कर दें। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, अगर हम उनका मैस फाइंड करें तो उनका मैस रिएक्टेंट के मैस के बिल्कुल इक्वल होगा। इसका मतलब ये है कि जो मैस है उसमें कोई चेंज नहीं आई, बल्कि जो फॉर्म है, जो स्टेट है, उसको हमने चेंज कर दिया है। अगर हम कानून बकाए मादा के एग्जांपल को डिस्कस करें तो एक जैसे केमिकल रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के दरमियान। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट आते हैं सिल्वर क्लोराइड के, और साथ हमारे पास बनता है सोडियम नाइट्रेट। अब अगर हम रिएक्टेंट्स का मैस फाइंड करें और प्रोडक्ट्स का मैस फाइंड करें तो हमें पता चलता है कि दोनों का मैस इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मैस में कोई चेंज नहीं आई, ना तो मैस डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही मैस क्रिएट हुआ है, बल्कि रिएक्टेंट जो हैं उनको हमने एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो कानून बकाए मादा जो है वो इस तरह से साबित किया जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मैटर है उसको ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। There are many chemical reactions that takes place in our surrounding, and we classify these reactions into different types. But here we will discuss about only two types of reactions, that are addition reactions and decomposition reactions. Addition reactions are basically those type of reactions in which two or more substances combine together and form a new compound. Such reactions are known as addition reactions. As the name suggested that these reactions involves the addition, so these reactions involve the combination of two or more substances to form a compound. For example, a chemical reaction between hydrogen and oxygen. And when hydrogen and oxygen combine together, then it form water molecules. So this is the addition reaction, as two or more substances combine together and form a one compound. Similarly, when hydrogen and chlorine react together, then they form hydrogen chloride. So this is also an example of addition reaction. जैसे हमारी सराउंडिंग में हर वक्त बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इन रिएक्शंस को मुख्तलिफ इक़साम में तकसीम किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर हमने दो इक़साम को डिस्कस करना है, वो हैं एडिशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिनमें दो या दो से ज़्यादा इशिया आपस में मिलती हैं और एक कंपाउंड बना देती हैं। जैसे हम इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एडिशन रिएक्शंस यानी वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा इशिया जो हैं वो आपस में ऐड होंगी और एक कंपाउंड बना देंगी, उन रिएक्शंस को हम एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एडअप होते हैं यानी आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आते हैं।
यानी जिस तरह से एडिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन में हमने देखा था कि दो या दो से ज़्यादा एशिया आपस में मिलेंगी और एक कंपाउंड बना देंगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो एशिया आपस में मिल रही हैं और हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये भी एडिशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। Next, we will discuss about decomposition reactions. Decomposition reactions are those reactions in which a compound decomposes or splits up into two or more substances. These reactions are reverse of addition reactions, and in these reactions we need heat to decompose a particular compound. Let us discuss about some examples of decomposition reactions. For example, when we provide heat potassium chlorate, then it decomposes into potassium chloride and oxygen. Similarly, when calcium carbonate is heated, then it produces calcium oxide and carbon dioxide. So you can see that according to decomposition reaction, a single compound decomposes into two or more substances. Decomposition reactions यानी वो रिएक्शन जिनमें जो एक कंपाउंड है वो स्प्लिट हो जाता है या टूट जाता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। ये रिएक्शन जो है ये एडिशन रिएक्शंस के रिवर्स रिएक्शन होते हैं, यानी जैसे एडिशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलते थे और एक कंपाउंड बना देते थे, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में उन रिएक्शंस का उल्ट होगा। एक कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में टूट जाएगा यानी स्प्लिट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हमें हीट रिक्वायर होती है क्योंकि जो कंपाउंड्स हैं उनको ब्रेक करना होता है। अगर हम इनकी एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो जो पोटाशियम क्लोरेट है, अगर पोटाशियम क्लोरेट को हीट किया जाए तो पोटाशियम क्लोरेट पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, क्योंकि जैसे हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की डेफिनेशन में पढ़ा कि एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक होता है और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस बना देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जब हम किसी कंपाउंड को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं यानी एनर्जी दे रहे हैं तो वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में डिकम्पोज हो जाएगा। So students, today we have discussed about law of conservation of mass. Here the question is state law of conservation of mass. Law of conservation of mass was put forward by a French chemist Lavoisier in 1785. This law states that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another. In other words, during a chemical reaction, total mass of product is equal to the total mass of reactants. Then we have discussed about this law with the help of an example. After that, we have discussed about types of chemical reactions. There are two types of chemical reactions: addition reactions and decomposition reactions. Here the question is define addition reactions. We will define addition reactions as the chemical combination of two or more substances to form a one compound is called addition reaction, and then you will write any two examples of these reactions. The next question is what are decomposition reactions? The chemical reaction during which a compound splits up into two or more substances, then these are called decomposition reactions. Usually heat is required to bring about decomposition reactions. Then similarly you will write any two examples of these reactions. In exercise the question number 5.3 is differentiate between the following: addition reactions and decomposition reaction. The answer of this question is on page number 70. In the answer of this question you will write addition reaction and decomposition reaction completely with their examples. So students, आज के लेसन में हमने कानून बकाए मादा को डिस्कस किया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कानून बकाए मादा बयान करें। कानून बकाए मादा 1785 में फ्रांसीसी साइंसदान लिवोज़े ने पेश किया। इस कानून के मुताबिक केमिकल रिएक्शंस के दौरान मादा ना तो पैदा और ना ही फना होता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाता है। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन के वक़ूअ पज़ीर होने पर हासिलात का मैस मुतामलात के मैस के बराबर होता है। फिर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू कानून बकाए मादा को डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ा वो है केमिकल रिएक्शंस की इकसाम। यहाँ पर हमारे पास सवाल आता है कि एडिशन रिएक्शंस की तारीफ़ करें। तो दो या दो से ज़्यादा एशिया यानी एलिमेंट्स या कंपाउंड का आपस में कीमियाई तौर पर मिलकर एक कंपाउंड बना देना एडिशन रिएक्शन कहलाता है। और फिर हमने दो मिसालों के ज़रिए एडिशन रिएक्शंस को अंडरस्टैंड किया।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की तारीफ करें। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके दौरान एक कंपाउंड कीमियाई तौर पर टूटकर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स में तब्दील हो जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की कोई सी दो मिसालें जो आपको लोग ईजी लगे वो आप लोग कर सकते हैं। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.3 है, मंदरजा झैल में फ़र्क बयान करें एडिशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 69 पर है। इस क्वेश्चन के आंसर में आप एडिशन रिएक्शन की तारीफ लिखेंगे और 7 मिसालें देंगे और फिर इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तारीफ लिखेंगे और 7 2 मिसालें ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इसमें जो आपको पॉइंट्स हाईलाइट करवाए गए हैं, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं, रिएक्शंस करवाए गए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।